ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بانی پیٹا کے ہمشیرہ علیمہ خان پر میڈیا ٹاک کے دوران انڈا پھینک دیا گیا. واقعہ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت پیش آیا جب علیمہ خان صحافیوں سے گفتگو کر رہی تھی. انڈا پھینکنے والی 2 لڑکیاں موقع سے گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھیں. تاہم کارکنوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا اور احتجاجاً اس کی اسکرین بھی توڑ دی. پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں لڑکیوں اور گاڑی کو اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا. واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. بھارت نے سیلابی ریلا چھوڑے جانے کے معاملے پر پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے. بھارت کی جانب سے سیلابی ریلا چھوڑے جانے سے متعلق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا ہے. بھارت کی جانب سے اطلاع موصول ہونے کے بعد وزارت آبی وسائل نے اس سے متعلق فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. حکام کا بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے آنے والے پانی کے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں حریق زینی اور فیروزپور زینی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. ناظرین، بھارت کی جانب سے دریاؤں میں چھوڑے گئے اضافی پانی نے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے. دریائے ستلج، راوی اور چناب میں شدید طغیانی کے باعث کئی بند ٹوٹ چکے ہیں. مزید درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں. منڈی بہاؤدین میں 2 نوجوان ڈوب گئے. شجاع آباد میں شیرشاہ کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا. 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی بستیوں میں داخل. ملتان کی بستی گرے والا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا. لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں. جھنگ کے علاقے شورکوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں درمیانی درجے کا سیلاب ہے. سلطان باہو پل سے 2,60,000 کیوسک کا ریلا گزرا. درخانہ کے مقام پر ریلوے پل سے سیلابی پانی ٹکرانے سے شورکوٹ خانیوال ریلوے سیکشن دوسرے روز بھی بند رہا. پنڈی بھٹیا میں ہائی فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا. 5,57,000 کا ریلا گزر رہا ہے. احمد پور سیال میں موضوع سمند والا بند میں شگاف پڑ چکا ہے. کئی علاقے زیر آب آ گئے. فصلوں کو نقصان پہنچا. لیاقت پور میں دریائے چناب اور دریائے سندھ کے سیلابی ریلوں سے تباہی مچ گئی. موضوع نور والا کی متعدد بستیاں سیلابی پانی کی نظر ہو گئیں. بڑے رقبے پر فصلیں بھی زیر آب آ چکی ہیں. چنیوٹ میں ریسکیو ٹیموں کا ٹھٹا حشمت اور موضوع ڈوم میں امدادی آپریشن جاری رہا. 25 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. اب تک 1312 افراد کو ریسکیو کیا گیا. شجاع آباد میں شیرشاہ کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا. 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی بستیوں میں داخل. منڈی بہاؤدین میں سیلابی پانی میں 2 مختلف مقامات پر 2 نوجوان ڈوب گئے. مونسون بارشوں اور سیلاب سے تباہی. ملک بھر میں نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی. 26 جون سے اب تک 884 افراد جاں بحق اور 1181 زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 489 اموات ہوئیں. پنجاب میں 223 افراد جان کی بازی ہار گئے. سندھ میں 58، بلوچستان 26، اسلام آباد میں 9 اموات ہوئیں. گلگت بلتستان میں 41 اور آزاد کشمیر میں 38 افراد جان سے گئے. پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہونے کا انتباہ جاری کر دیا گیا. سندھ میں 7 سے 9 ستمبر کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض مقامات میں بھی بارشیں متوقع ہیں. بالائی اور پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا ہے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈرز کے خطرے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. راول ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی. اسپل ویز کھول دیے گئے. راول ڈیم میں پانی کی سطح 1,752 فٹ ہو گئی ہے. راول ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی آخری حد 1,752 فٹ ہے. پانی کی سطح 1,752 فٹ تک پہنچنے پر اسپل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیم کے اسپل ویز کھولنے سے قبل سائرن بجا کر لوگوں کو مطلع کیا گیا، جبکہ انتظامیہ پانی کے اخراج کی مانیٹرنگ کر رہی ہے. راول ڈیم کی قریبی آبادیوں کو محتاط رویہ اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کے ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ایک جامع اور فوری پیکج طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صدارت میں طویل اجلاس ہوا جس میں اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر اہم ڈپارٹمنٹس کو بحالی پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت دی گئی. وزیر اعلیٰ نے متاثرین کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بحالی پیکج میں امدادی رقوم کو بڑھایا جائے تاکہ متاثرین کی فوری مدد ممکن ہو سکے. انہوں نے سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کے لیے خصوصی بحالی پروگرام ترتیب دینے کی بھی ہدایت کی. مریم نواز نے بحالی پیکج کے لیے سروے کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس عمل کے لیے شفاف ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی جس میں ڈیجیٹل ریکارڈنگ کا بھی اہتمام کیا جائے گا. انہوں نے سروے پروجیکٹ کے لیے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی جو اس عمل کی نگرانی کرے گی. وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ وہ سیلاب متاثرین کی جلد بحالی کے لیے پیکج کا خود اعلان کریں گی. گھر تباہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پر واپس نہ جانے والے خاندانوں کے لیے ہر ضلع میں عارضی مارکی لگائی جائے گی تاکہ وہ سردی کی آمد سے قبل کسی محفوظ جگہ منتقل ہو سکیں. ان مارکیز میں مرد و خواتین کے لیے الگ الگ جگہیں مختص کی جائیں گی اور وہاں صاف پانی، کھانا اور دیگر ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی.
नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स, DIGs और दीगर हुकाम शरीक हुए, जबकि कुछ वज़रा वीडियो लिंक के जरिए भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दरियाओं में पानी कम हो रहा है, मगर 7 से 9 लाख क्यूसेक की मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल की तैयारी करना होगी। गुड्डू बैराज पर 8 सितंबर को पानी का बहाव उरूज पर पहुंचेगा। उन्होंने रिलीफ कैंप्स के क़याम, अवाम के बर वक्त इनखला और हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। इजलास को तरबेला, मंगला, गुड्डू और सखर बैराज में पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। हुकाम ने बताया कि 528 रिलीफ कैंप्स और 169 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। अब तक 1,09,000 से ज्यादा अफराद को कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 7 लाख से ज्यादा मवेशियों को वैक्सीन फराहम की गई। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर्स को हिदायत दी कि घर छोड़कर आने वाले मुतासरीन का भरपूर ख्याल रखा जाए। कश्मोर, कंदकोट और कादिरपुर शेख बंद की मजबूती का काम तेज किया जाए। दरियाओं और बैराजों में सैलाबी पानी के बहाव में कमी बेशी का सिलसिला जारी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, हुकूमत सिंध सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। पानी के उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम मुतालिका इदारे अलर्ट पर हैं। शर्जील मेमन ने बताया कि गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब जारी है। पंजाब के पंजन बैराज पर पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो 3,10,489 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज पर इनफ्लो 3,59,570 क्यूसेक और आउटफ्लो 3,27,481 क्यूसेक, जबकि सखर बैराज में इनफ्लो 3,31,155 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें कमी आ रही है। आउटफ्लो 2,77,355 क्यूसेक है। उनका कहना था कि सैलाबी खतरात के पेश नज़र मुमकिना मुतासर इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कच्चे के इलाके से 14,490 अफराद मुंतकिल किए गए। मजमूई तौर पर 1,93,320 अफराद को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल, मुतासरा अफराद की मुंतकली और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला खुसूसन दादू, सखर, लाड़काना और कंडियालू में सैलाब इमरजेंसी के बायस जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ फराहम की जा रही हैं। महकमा इतलात सिंध के मुताबिक कच्चे के इलाकों से 42 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि दादू में फ्लड इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ कैंप कायम किया गया, जहाँ खवातीन OPD और MCH सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। मोहब्बत दीदो, कुंडियादो और सखर के मुख्तलिफ इलाकों से भी दर्जनों अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। दूसरी जानिब दरियाओं और बैराजों में पानी की आमद और इखराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद है। महकमा इतलात के मुताबिक सूबाई फ्लड इमरजेंसी सेल तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त में अहम पेशरफ सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम और काबीना के खिलाफ अदालती हुक्म उदूली पर तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कॉज लिस्ट के मुताबिक केस की समाअत 10 सितंबर को मुकर्रर की गई है। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे, जबकि जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज भी बेंच में शामिल होंगे। जराये के मुताबिक 1 सितंबर को जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने फाइल चीफ जस्टिस को लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए भिजवाई थी। इससे कबल केस जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत में ज़ेर समाअत था, जिन्होंने गुज़िश्ता समाअत पर वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। ताहम जस्टिस एजाज इसाक खान के टैक्स केसेस के लिए स्पेशल डिवीजन बेंच का हिस्सा बनने के बाद उनके सिंगल बेंच के केसेस ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में रेलवे निज़ाम की बेहतरी और मुश्तरका मनसूबों पर तफसीली बातचीत की गई। इजलास में कराची कैंट और सिटी स्टेशन की सफाई सुथराई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देने का फैसला किया गया। साथ ही रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन से तजावुजात हटाने, स्टेशन की तज़ीन और आराइश और नए रेलवे लाइन्स बिछाने के मनसूबों पर इत्तफाक किया गया। कराची तरोड़ी AC ट्रेन सर्विस के आगाज़, कराची तसक्कर मुसाफिर ट्रेन चलाने और अहम रेलवे मंसूबों में मुश्तरका सरमायाकारी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत रेलवे मंसूबों में भरपूर ताउन करेगी, जबकि वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा कि तमाम सहूलियात आउटसोर्स करने से सर्विस बेहतर होगी। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से भी अहम बातचीत हुई। वज़ीर आला सिंध ने तजवीज़ दी कि मंसूबों में डोनर एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जाए, जिस पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। ML1 की अपग्रेडेशन,
रेलवे ज़मीनों का बेहतर इस्तेमाल और मुसाफिरों के लिए मज़ीद सहूलियात की फराहमी पर इत्तफाक किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की हिमायत कर दी है। PTI ने कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट करते हुए ऐवान से बाहर अपनी अवामी असम्बली लगाई। इस मौके पर महमूद खान नचकजई अख्तर मिंगल की जानिब से 8 सितंबर को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर PTI ने अपनी हिमायत का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ की अवामी असम्बली ने जस्टिस अतर मिनल्ला की तकरीर का हिमायत की। इसके अलावा अफगान शहरियों के इनखला में तोसी करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। हमारे ओहदेदारान को हटाया जा रहा है, ऐसे में बातचीत कैसे करें? पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाक फौज की मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, मुल्क का दिफा किया है, अभी जंग जीती है, हम इसको कदर से देखते हैं। हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने न इस कानून साजी को चैलेंज किया है, न करने का इरादा है। उन्होंने मजीद कहा कि सलाह पर तमाम जमातों को सियासत और सूबायत से बालातर होकर सबकी मदद करने की जरूरत है। इस वक्त मुल्क में सैलाब की हाल है। पंजाब हुकूमत से भी कहता हूं कि मिलकर सैलाब मुतासरीन के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए कोशिशें कर रही है। पीर से सैलाब मुतासरा इलाकों में जा रहा हूं, बोनेर में सैलाब मुतासरीन के साथ मिलूंगा। नाज़रीन, महाना टैक्स वसूली में 50 अरब की कमी के बावजूद तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 21% इजाफा हो गया। FBR के मुताबिक जुलाई से अगस्त तनख्वाहदार तबके ने 85 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। पिछले साल इसी मुद्दत में तनख्वाहदार तबके से 70 अरब रुपए टैक्स लिया गया था। 2 माह में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 21% यानी 15 अरब का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल मुलाजमत पेशा अफराद से मजमूई इनकम टैक्स वसूली 555 अरब रुपए थी। एक साल में इनकम टैक्स वसूली में 188 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक नॉन कॉर्पोरेट मुलाजमीन ने 41 अरब से जायद, कॉर्पोरेट मुलाजमीन ने 20 अरब टैक्स दिया। सूबाई सरकारी मुलाजमीन ने 10.5 अरब, विफाकी मुलाजमीन ने 7.6 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया। बड़े पेंशनर्स पर नया टैक्स लगाने के बावजूद 2 माह में सिर्फ 18 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अतियात के आलमी दिन की मुनासिबत से कौम से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद व तावन बढ़ाने की अपील कर दी है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर आज अतियात के आलमी दिन पर मौशरती फलाह बहबूद में इमदाद व अतियात और बाहिमी रवादारी की अहमियत को उजागर करता है। पाकिस्तान की मौशरती तारीख़ इस बात की गवाह है कि पाकिस्तानी बिला रंगो नस्ल और बिला तासुब दूसरों की बेलौस मदद करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों की खिदमत का पुरखुलूस जज्बा पाकिस्तान की समाजी मुआशरती इक़दार और तहसीब का असासा है। पाकिस्तान के रज़ाकार खिदमतकारों ने हादसात, कुदरती आफात, जंग और दीगर एमरजेंसी हालात में हमेशा अपने अहले वतन की भरपूर अमली और माली मदद की है। पाकिस्तानियों की फलाही कामों और इमदाद व अतियात में भरपूर शिरकत की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम सबसे ज़्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि हमारे मुआशरे के मुखय्यर हज़रात अतियात के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त इलाज, मुफ्त दस्तरखान, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस जैसी खिदमत बड़ी खुशउस्लूबी से अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हाकिम अली शेख की वफ़द के हमरा अहम मुलाकात हुई है। वफ़द में सीनियर वकील रहनुमा मुबश्शिर मिर्ज़ा, आमिर ज़ेब, पी रियाज और कासिम खान शामिल थे। मुलाकात में कानूनी और इंतज़ामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल और अदालतों में ज़ेर समाअत अहम मुकदमात पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ऑफिस और महकमा कानून सिंध के दवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। कानून के हुक्मरानी यकीनी बनाने के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कानूनी मामलात में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि हमें एक टीम वर्क के तहत अदालती उमूर समेत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मज़ीद तक़वियत देना होगी। कराची में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश से मनाने का सिलसिला जारी है। कागजी बाजार में रबीउल अव्वल के सिलसिले में स्टॉल सज गए हैं, जहां ईद मिलादुन नबी के झंडे, नालान पाक के बैजेस, LED लाइट्स और दीगर सामान मौजूद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा NTN न्यूज़ जुनेद फिरोज से। जी जुनेद, बताइएगा। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी 1500वां जश्न विलादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। घरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। साथ साथ जश्न विलादत के जो झंडे हैं वो भी घरों पर लगा दिए गए हैं। इस वक्त मैं कागजी बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी स्टॉल्स लगा दिए गए हैं जहाँ पर जश्न विलादत के सिलसिले में सामान मौजूद है, जिनमें जश्न विलादत के झंडे, इसके साथ साथ जो बैजिस हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर इमामें भी मौजूद हैं और जो लाइटें हैं वो भी मौजूद है और दीगर सामान भी यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी यहाँ आ रहे हैं और ख़रीदारी छोटे बच्चों के हमरा, फैमिली के हमरा कर रहे हैं।
खरीदारों का ये कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रश में इजाफा होगा और शहरी जो है वो यहाँ आएंगे और अपने हिसाब से जो शॉपिंग है वो करते रहेंगे और यहाँ से सामान जो है वो उसी तरह खरीदते रहेंगे। एक रोज बाकी रह गया है 12 रबीउल अव्वल में, तो लोगों का जोश और खरोश बढ़ता ही जा रहा है। एक रोज बाकी रह गया है, काफी जो जज्बा देखने में आ रहा है। सिर्फ ये कागज़ी बाजार की बात नहीं, शहर की दीगर जो मार्केटें हैं वहां पर भी शहरियों का रश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। एक रोज बाकी रह गया है, तो बच्चे जो है ज्यादा इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो जुलूसों में शिरकत करते हैं। तो इस वजह से वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके वो मार्केट का रुख करें और अपने बच्चों को उनकी मनपसंद जो चीजें हैं जश्न विलादत के हवाले से वो खरीद के दी जा सके। जी, इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।